WRC Chairman Ketan sir, my friend Mangesh, and other office bearers of the WRC for giving me this opportunity of knowledge sharing with all of you. So without wasting much time, we'll straight away start with the session. So my topic is about registration and QPR. So recently you all are aware that new website of the MahaRERA has come up, and that website is applicable with effect from 5th May 2025. As of now, there are two websites which are running. Old website, whatever the applications that you have filed with the old website on or before 5th May 2025 will be dealt in the old website only. With effect from 5th May 2025, you have to file any new application, that may be registration, extension, correction, whatever, in the new website only. So this is just about what are the technical sections which deal with the registration. It's basically the chapter 2 of the Act that deals with the statutory provisions of the registration of the project. I'll quickly run you through as to who is required to do the registration of the project. So the popular exemption that is given by the RERA from the project registration is that there are two conditions. First condition is the area of the plot should be less than or equal to 500 square meter, or number of units that are proposed to be developed in all phases in that particular project should be less than or equal to 8. These two conditions are either or. Okay, satisfaction of any one of the condition will make this project eligible for the exemption from the RERA registration. There is one landmark judgment of the Gitanjali Amman case, wherein RERA was of the opinion that these two conditions are cumulative. These two conditions must be satisfied in order to get exemption from the MahaRERA registration. And accordingly, the then chairman of the MahaRERA, Mr. Gautam Chatterjee, he gave his decision against the Gitanjali Amman, the developer, and asked them to register and also imposed a heavy penalty on them. So aggrieved by this particular order, they filed an appeal with the appellate tribunal. Appellate tribunal went through the appeal. Full bench was presided on this particular matter. The then chairman of the MahaRERA appellate tribunal, Indira Jain madam, and other two members also. And then the decision, 2:1 decision was given that these two conditions are either or. So इसके बाद में रेरा ने इसके लिए एक ऑर्डर भी इशू की है that if कोई भी एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, प्लॉट का एरिया जो है वो 500 स्क्वायर मीटर या उससे कम है, और नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू आर proposing to develop are less than or equal to 8, then the project will get exemption. So just a small piece of advice, if at all a developer comes to you for the advice whether to go for the RERA registration in such cases or not. So there are two practical difficulties as per my experience that are faced by the developers by not registering a project and taking an advantage of this exemption. First, sales के लिए बहुत issue होता है because people don't understand. They think that RERA is necessary for each and every real estate project. So sales is difficult. Second thing, जो भी आपके allottees है, वो जिधर भी loan लेने के लिए जाते हैं बैंक को, so you have to deal with the bank officials, which is very challenging. Make them understand that you are exempted from the RERA registration. So अगर आपने registration के time पे ये decision ले लिया कि you don't want to go for registration, and once you proceed, you sold few units, and uske baad mein you realized कि I'll have to get RERA registration in order to get the sales. So at that time, it will be treated as an ongoing project, violation of Section 3, and accordingly, it will be dealt in. So at the time of registration only, before starting the sale, you have to take a decision whether to go for a registration or not. Other two conditions are, one condition is which was applicable at 2017 transition provision, that as on when the act became applicable 1st May 2017, अगर उस डेट पे प्रोजेक्ट के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर ऑक्यूपेंसी है, तो दैट प्रोजेक्ट नीड नॉट बी रजिस्टर्ड. एंड द अनदर कंडीशन कि रीडेवलपमेंट सिर्फ रिपेयर या रिनोवेशन का वर्क है या रीडेवलपमेंट है, बट विदाउट any new sale, without marketing, in that case, yes, the registration is not required.
नाउ अबाउट द महारेरा का न्यू वेबसाइट. सो महारेरा की न्यू वेबसाइट का जो नामकरण है या फिर इसका जो नेमिंग सेरेमनी है, so naming is Mahakriti, that it stands for Maharashtra Complaint and Regulatory Integrated Technology Implementation. It will deal about the project registration, extension and correction applications. So जैसा मैंने आपको बताया, जो भी applications you have filed in the old website, that will remain in the old website. You don't have to file a duplicate application in the new website as well. आपको वो जो application है वो वहीं पे deal करना है. Then जिस प्रोजेक्ट का, लेट्स से एक प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन एप्लीकेशन आपका ओल्ड वेबसाइट में पेंडिंग है, तो आपका जो भी क्यूपीआर या डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग जो भी है वो ओल्ड वेबसाइट में ही होगा. आपका प्रोजेक्ट जो है वो माइग्रेट नहीं होगा टू द न्यू वेबसाइट. देन with effect from 5th May 2025, all registration, extension, correction applications are directed to be filed in the new website only. Users are directed not to submit duplicate applications, and जो भी क्यूपीआर के डॉक्यूमेंट्स है, अभी मार्च का भी क्यूपीआर अभी किसी ने किया नहीं रहेगा, तो दैट विल, वो जो है, अगर कोई एप्लीकेशन ओल्ड वेबसाइट में पेंडिंग नहीं है तो कंप्लायंस जो है वो नया वेबसाइट में ही करना पड़ेगा. सो बिफोर गोइंग टू दिस माइग्रेशन, I just want to ask how many of you are doing giving the services of RERA registration extension to your clients? Okay, quite a few. Okay, so मतलब वेबसाइट देखी है नहीं देखी है, इसलिए आई जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन. सो माइग्रेशन के लिए जो प्रोजेक्ट्स ओल्ड वेबसाइट में रजिस्टर्ड है और जिनको आपको अभी नया वेबसाइट में लेके आना है, सो देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स दैट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल हैव टू गेट फ्रॉम योर क्लाइंट in order to migrate that project from old website to new website. So well, very important authority letter. RERA has evolved since 2017. It came in 2017 and it experienced various things from the promoter, from the allottees, from the industry, and in accordance with that, it kept on evolving and kept on making changes. We should thank to RERA also, because of which I'm here. Because if RERA would have been stagnant, then nobody would have arranged a session to understand what are those things that are dynamically changing each day, as far as registration is concerned, certification is concerned, or website is concerned. So बहुत बार कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है रेरा के वेबसाइट पे, एंड देन इफ एट ऑल अ कंप्लेंट इज फाइल्ड, देन द प्रमोटर used to take a stand that I have not filed this, मेरा कंसल्टेंट ने फाइल कर दिया, या फिर मुझे मालूम नहीं है किसने कर दिया. So there Maharera came up, okay, you now file an authority letter as to who is going to sign the documents. The documents that are signed by that particular signing authority only will be considered as a authorized document by the RERA authority. So let's say you're filing an extension application, your letter of authority is with some different person, an application is filed with some different person, RERA will raise a query that this application is not filed by the authorized signatory. SRO membership, so self-regulatory organizations, there are 4 or 5 self-regulatory organizations that are specified by MAHARERA authority, whose membership is necessary before you file a registration application. उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, बिकॉज बहुत बार पहला जो वेबसाइट था, यू ऑल नो, वहां पे सिर्फ एसआरओ मेंबरशिप का नंबर डाल के काम होता था, तो वहां पे लोग कुछ भी डालते थे. तो अभी सर्टिफिकेट कंपल्सरी कर दिया. एड्रेस प्रूफ, so address proof के लिए there are 6 documents that are available in that drop down: electricity bill, sale agreement copy, leave and license agreement, lease deed, tenancy agreement, and telephone bill. Any document out of these 6 documents will do. Then details of the professionals: architect, engineer, and chartered accountant. पब्लिक व्यू में इनका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर बाकी सब चीजें नहीं दिखती है, बट देन रेरा के पास है, बिकॉज प्रमोटर हैज टू फिल इन कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ऑफिस किधर है, ये सब चीजें. सीए का जो फॉर्म सी साइन कर रहा है अभी, तो उसका ही नाम डालना है. पहला जो ओल्ड वेबसाइट जब सितंबर में आया था, ये नया वेबसाइट, तो तभी दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम डालने थे. द सीए हु इज गोइंग टू सर्टिफाई फॉर्म 3 एंड एज वेल एज द सीए हु इज गोइंग टू सर्टिफाई फॉर्म 5. एज ऑफ नाउ you have to fill in only the name of that gentleman who is going to certify form 3. Then details of the inventory in macro enabled Excel sheet. This is the very new thing which has been brought by the new website. So there is one auto populated macro enabled Excel sheet that has to be downloaded from the MAHARERA website. तो आपने जो भी नंबर ऑफ फ्लोर्स और नंबर ऑफ हैबिटेबल फ्लोर्स जो भी आपने डाला रहेगा, उसके हिसाब से वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, एंड यू हैव टू फिल इन ईच एंड एवरी
यूनिट का डिटेल्स इन दैट पर्टिकुलर माइक्रो एनेबल एक्सेल शीट. सो इसके पहले हम लोग एक लिस्ट दे देते थे, एक पर्टिकुलर एरिया का जो फ्लैट है, ऐसे कितने फ्लैट्स है, उसमें से सेल कितने हो चुके हैं. सो एक पर्टिकुलर फ्लैट, लेट्स से फ्लैट नंबर 404, ये सेल हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक्चुअली देखना पॉसिबल नहीं था. बट विथ दिस auto populating micro enable Excel sheet, now each and every unit will be disclosed on the RERA web page. Then SPOC, single point of contact, एक इसका भी आपको इंफॉर्मेशन देना है फ्रॉम डेवलपर्स साइड, हु विल बी द स्पॉक, उसका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर. एंड henceforth जो फॉर्म 3 है, that is CA certificate, it will be generated through the RERA portal directly. अभी ऑप्शन है, अभी जब भी आप माइग्रेशन कर रहे हो तभी आपको वहां पे सिर्फ डिटेल्स जो है वो डिटेल्स यू हैव टू, तो ऑलरेडी साइन किया हुआ ओल्ड वाला फॉर्म भी अपलोड किया तो चल रहा है. बट देन वन स्मॉल एडवाइस ऑफ कॉशन, अभी इन न्यू वेबसाइट ईच QPR के लिए अलग अलग जगह है टू अपलोड. ओल्ड वेबसाइट में ये सब नहीं था. जो आप फॉर्म 1 के टैब में फॉर्म 1 यू यूज टू अपलोड, फॉर्म 2 के टैब में फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 के टैब में फॉर्म 3, वो अभी कौन से क्वार्टर का है या से पर्टिकुलर पीरियड का है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी. अभी स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक जगह है जहां पे आपको फॉर्म अपलोड करना है. सो दैट्स व्हाई ऑफ लेट RERA हैज स्टार्टेड सेंडिंग नोटिसेस टू एवरीबॉडी फॉर कंप्लीशन ऑफ द QPR. एक तरह से अच्छी भी बात है, एक तरफ से बुरी भी बात है. अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर द वन हु इज गोइंग टू साइन द फॉर्म. बुरी बात यह है कि वी आर द वन हु आर गोइंग टू साइन द फॉर्म मे बी विदाउट नॉट अंडरस्टैंडिंग, या फिर ये जो फॉर्म देना है वो फॉर्म की अहमियत, उसका the risk that we carry by certifying something that has been given by the developer, तो ये थोड़ा सा it becomes a very risky affair. Now migration के लिए step, yes it is visible. So first step जो है, आपको पहली बात तो आपको पहले लॉगिन करना है नया वेबसाइट में विद द क्रेडेंशियल्स ऑफ द ओल्ड वेबसाइट ओनली. लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो आपके ओल्ड वेबसाइट के उसके साथ ही आपको नया वेबसाइट में लॉगिन करना है. वंस यू लॉगिन तो OTP चला जाएगा, जो भी जिसका भी नंबर रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहेगा इन द ओल्ड वेबसाइट, उसके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा. दैट OTP यू हैव टू फर्स्ट फिल इन. एक बार, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सरसाइज है. OTP दिया, दिस विंडो विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. सो ये प्रोफाइल, जनरल इंफॉर्मेशन, then address for official communication, authorized signatory details, partners के details and past experiences. इसमें से most of the जो tabs है वो auto fill है, वो भर के आ जाएंगे. whatever the information which you had given in the old portal, वो यहाँ पे अपने आप extract हो रही है. then second stage is general details. general details में again basic details, promoter details, there are like 8 tabs. इसमें से most of the information again is auto filled from the old web page, except this last के जो 4 टैब है, that is single point of contact which is new information. ये old website में नहीं थी. then LOT grievance redressal officer details. तो महारेरा का एक ऑर्डर है कि जिसमें ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है कि एक डेवलपर जो है उसके ऑफिस में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है, जिसका काम ये रहेगा कि किसी LOT की कंप्लेंट या फिर उसका जो भी ग्रीवेंस है वो उसके पास पहले जाएगा, एंड देन ही हैज टू मेक श्योर दैट सम स्टेप्स आर बीइंग टेकन अप टू एड्रेस दोस ग्रीवेंसेस. सो इफ एट ऑल दैट पर्टिकुलर प्रमोटर हैज अपॉइंटेड दिस LOT ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, तो उसका नाम, अता पता, सब चीजें यहाँ पे डालनी है. प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स की डिटेल्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड SRO के डिटेल्स, यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है. देन थर्ड स्टेज इज there are 3 different tabs: legal, technical and finance. So each tab will have to complete. So first tab is legal. Legal के लिए again most of the information जो है वो auto fill रहेगी except litigation. Litigation old website में भी थे, but then again you have to fill in this new website also. बाकी सब जो tab है वो सब कुछ अपने आप भर के आ जाएंगे. Then next is technical tab. अभी technical tab में भी
ऑल ये जो 5-6 जो टैब्स है सब कुछ आपका अगेन ऑटो फिल होके आएगा, except that Excel sheet. I said macro enabled Excel sheet that you have to download, fill in and उसको वैलिडेट करना है एंड अगेन अपलोड करना है. अभी वो एक्सेल शीट जो है वो कभी मानती है कभी नहीं मानती है, तो उसको फिर से डिलीट करना पड़ता है, फिर से भरना पड़ता है. वन हैज टू डू दिस एक्सरसाइज. देन फिफ्थ स्टेप इज फाइनेंस टैब. अगेन ये फाइनेंस टैब जो है ये भी जो आपके पहले दो टैब्स है वो टैब्स ऑटो फिल होके आएंगे. फॉर्म 3 जो है उसकी इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल इन एंड अपलोड द कॉपी ऑफ द साइंड फॉर्म 3. ये सब होने के बाद फाइनल स्टेप इज सबसे नीचे प्रीव्यू जो है वो आपको प्रीव्यू जनरेट करना है. जब भी आप प्रीव्यू जनरेट करते हो जो भी डिटेल्स आपने भरे वो फिर से एक बार देखने का आपके पास चांस है, क्योंकि वंस दिस डिटेल्स आर सबमिटेड यू कैन नॉट चेंज इट. सो go through these go through the application very carefully. आप प्रिंट भी ले सकते हो, आपके पास रख सकते हो. once this is done then you can submit the application. We'll take up the questions. Let me complete some. See, there is an option of making a payment. Actually ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो नया एप्लीकेशन का लिया है, क्योंकि वो मेरे पास माइग्रेशन वाला नहीं था. वहां पे आपको सबमिट का ऑप्शन जो है वो आता है एप्लीकेशन सबमिशन का. देयर इज नो पेमेंट दैट यू हैव टू मेक. देन old website and new website, as compared to that, what is the additional information that you have to procure from your client in order to get project registration? So उसकी जो मैंने लिस्ट है वो लिस्ट यहाँ पे बनाई है. सो फर्स्ट इज ऑथोरिटी लेटर या बोर्ड रेजोल्यूशन. अभी भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्वेरी रेस करके महारेरा वाज डिमांडिंग दीज डिटेल्स, बट देन नाउ दे हैव मेड इट ऑब्लिगेटरी. कंपनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन देना है, अदर देन कंपनी है तो आपको ऑथोरिटी लेटर देना है कि हु इज गोइंग टू साइन all the documents, and you have to make sure that only that person is signing those documents. स्पॉक के डिटेल्स, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एड्रेस का प्रूफ, जो 6 चीजें मैंने बताई माइग्रेशन के टाइम पे देनी है वही उसमें से 6 चीजों में से एक वन डॉक्यूमेंट यू हैव टू गिव एज प्रूफ. डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स विद एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक मेंबरशिप नंबर है, फर्म डिटेल्स. अपना पहले वेबसाइट में मेंबरशिप नंबर देना कंपलसरी नहीं था, अभी मेंबरशिप नंबर भी देना है, आपके फर्म का नाम भी देना है, अंडर हुज nomenclature chartered accountant is going to certify the form. Then this SRO registration certificate, then details of inventory in macro enabled Excel sheet. Form 3 for the new registration application gets generated through the Mahakiti website. नया एक चीज, अगर आपको फेजेस के डिटेल्स जो है वो भी यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली देना है, तो वहां पे आपको ऑप्शन आता है कि यहाँ पे कुछ पास्ट फेजेस है क्या. आप ये एक के बाद का मतलब सब्सिक्वेंट फेज है, तो पहले वाले फेजेस के आपको डिटेल्स देने हैं. इफ दिस इज फर्स्ट फेज एंड देयर आर गोइंग टू बी फ्यूचर फेजेस के आपको डिटेल्स अभी देने हैं. देन there is an option. This is one good thing because Mumbai and Pune के बाहर I don't think Mumbai, Pune, up to some extent Nasik and Nagpur, there is no much awareness about the RERA amongst the as well as. So there is one option is given that you can directly adopt model agreement का copy. तो रेरा ने मॉडल एग्रीमेंट एक स्पेसिफाई करके दिया है, मॉडल अलॉटमेंट लेटर स्पेसिफाई करके दिया है, तो यू कैन डायरेक्टली अडॉप्ट दैट. As far as this model agreement is concerned, Dilip sir ने जैसे बताया, there are some clauses which are non-negotiable, some clauses which can be edited, which can be deviated. तो अगर वो deviate किए तो उसका deviation report देना है. But then for the small developers who are working in, let's say, somewhere in Ratnagiri, somewhere in Nanded or some other remote cities, let's say, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि डायरेक्टली रेरा का जो मॉडल एग्रीमेंट है वो अडॉप्ट कर सकते हैं. उनको फिर यानी मॉडल उनके एग्रीमेंट फॉर सेल की कोई कॉपी देने की जरूरत नहीं है. देन इन केस ऑफ रिहैब प्रोजेक्ट्स, इंफॉर्मेशन जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए. फॉर्मेट में आपको ओल्ड आपका जो यूनिट नंबर है वो न्यू यूनिट नंबर, उसका ओल्ड एरिया कितना था, अभी न्यू एरिया अलोंग विद द फ्री एरिया कितना है, और जो पैसा देके एरिया खरीदा है वो कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन
for those projects which are rehab projects, उनके लिए देना कंपलसरी है. Then बिल्डिंग का नाम as per plan and advertisement. अभी प्लान पे बिल्डिंग का नाम रहता है बिल्डिंग नंबर 1 और एडवर्टाइजमेंट बिल्डिंग का नाम कुछ तो लिली ब्लॉसम या फिर ऐसा कुछ रहता है. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एन एलओटी और उसका जो प्रोफेशनल है टू लोकेट कि ये कौन सा बिल्डिंग है पर्टिकुलर प्लान में. देयर आर मल्टीपल बिल्डिंग्स. सो दिस इज वन न्यू थिंग व्हिच द रेरा हैज कम अप विथ. आपको बिल्डिंग का नाम आपका एडवर्टाइजमेंट मटेरियल के हिसाब से क्या है वो देना है और प्लान पे क्या वो भी देना है सो दैट आप वो लिंक कर सकते हो. पार्किंग के डिटेल्स जो है वो पार्किंग के डिटेल्स भी अभी काफी डिटेल में देने हैं. जैसे कि पार्किंग कहाँ पे है, आपका पार्किंग बेसमेंट में है, स्टिल्ट में है, पोडियम पे है, मैकेनाइज्ड है, पार्किंग टॉवर है अलग से. तो वो सभी चीजें देनी है. प्लस उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी देना है क्योंकि रेरा के पास बहुत सारे केसेस आए. पार्किंग तो दिया है उसमें वैगनर चली जाती है, फॉर्च्यूनर नहीं जाती है, या फिर सबको लिख के दे दिया कॉपी पेस्ट, मैं पार्किंग दूंगा बट देन पार्किंग उतने अवेलेबल है ही नहीं. सो पुणे का एक केस हुआ था जहाँ पे टोटल 32 फ्लैट्स थे, हर एक के एग्रीमेंट में लिख के दे दिया था along with one closed parking. कॉपी पेस्ट क्लरिकल मिस्टेक था या इंटेंशनली किया हुआ था, doesn't matter, but there were only 20 closed parkings in the project. So when the matter came up with the RERA, so RERA came up with the circular saying that जो भी पार्किंग आप दे रहे हो तो आपको सिर्फ ये लिख के फायदा नहीं है कि along with one closed parking. वो closed parking कहाँ पे है, उस क्लोज पार्किंग का नंबर यू मार्केट दी पार्किंग नंबर दो. Some of the orders that are related to the RERA registration. So कमेंसमेंट सर्टिफिकेट एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लॉटेड डेवलपमेंट के लिए क्या है. सो इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन था आज तक कि बिल्डिंग के लिए तो सबको मालूम है सीसी किसको बोलते हैं, ओसी किसको बोलते हैं, बट देन व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट एज अ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फॉर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट एंड व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट एज अ completion certificate for plotting project. तो इसके लिए महाराजा has come up finally with one very clear clarification. So it says that commencement certificate is एक तो फाइनल अप्रूवल अकॉर्डिंग टू लैंड सब डिविजन लेआउट इन द फॉर्म D3 ऑफ द UDCPR. अभी ये थोड़े से टेक्निकल कंसेप्ट्स है. UDCPR इज यूनिफाइड, उसको हर एक को मतलब जो मुंबई में एप्लीकेबल है वही अभी सभी जगह पे एप्लीकेबल है. सब देयर आर नो डिफरेंट मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से अभी डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे, सबको अभी एक ही डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स जो है वो एप्लीकेबल है. तो उसमें जो फॉर्म D3 दिया है उस फॉर्म D3 में वो फाइनल सब डिविजन जो है प्लॉटिंग का वो होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो जो फाइनल सब डिविजन जिसको बोल सकते हैं वैसे वाली NA की परमिशन, ये दोनों में से एक विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट फॉर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट. नाउ फॉर कंप्लीशन, तो कंप्लीशन के लिए copy of the acknowledgement submitted to the concerned competent authority on self-certification of the promoter that the conditions imposed in final approval according to land subdivision layout in format of Form D3 of UDCPR are complied. So most of the authorities are not giving completion certificate, especially to the plotting projects. Therefore, they have come up with the solution saying that D3 जिसमें आपको approval दिया था, approval is always conditional even for the plotting projects. तो वो कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई है तो प्रमोटर इज सपोज टू गिव अ सेल्फ सर्टिफाइड लेटर टू दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी व्हिच हैज सैंक्शनड और व्हिच हैज गिवन दैट D3 उनको कि मैंने ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है एंड उनका जो इनवर्ड का थप्पा है वो वाला कागज अपलोड करना है एज अ OC फॉर द प्लॉटिंग प्रोजेक्ट. एंड देन इन केस ऑफ NA, अगर आपको नॉन एग्रीकल्चर वाला NA वाला सर्टिफिकेट मिला है तो इन दैट केस रिसीट ऑफ इंटीमेशन गिवन टू तहसीलदार एज एन एक्नॉलेजमेंट of having received the intimation of date of commencement of the non-agricultural use after completion and execution of all the conditions as may have been imposed by the concerned competent authority. NA approval जो रहता है वो भी always conditional रहता है, बिजली सड़क पानी के बहुत सारे conditions वहां पे डाले हुए रहते हैं. वो सब कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद एक इंटीमेशन देना पड़ता है तहसीलदार को कि
जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज है उस लैंड का वो हमने स्टार्ट कर दिया है आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल दोस कंडीशंस व्हिच वेर इम्पोज्ड इन नॉन एग्री व्हाइल ग्रांटिंग एनी परमिशन. तो वंस दैट लेटर इज गिवन उसका एक्नॉलेजमेंट रेरा को सबमिट करो, दैट विल बी डीम्ड एज अ completion certificate for a plotting project. Order number 56 has briefly already covered by the Dilip sir. I'll only touch upon its aspect as far as the RERA registration is concerned. So most of the time I get a queries from our CA brethren only, and those are with respect to this. It's very simple order. आप में से जिस किसी को भी रेरा रजिस्ट्रेशन का प्रैक्टिस चालू करना है उसको एक सिंपल एडवाइस है, जो ऑर्डर नंबर 1 टू ऑर्डर नंबर 64 रेरा ने जो इशू किए हैं वो सभी ऑर्डर्स प्रिंट लो और पूरे के पूरे पढ़ लो. आपको ऑलमोस्ट 60-70% नॉलेज जो है वर्किंग नॉलेज वो उसमें से आ जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल. एंड वी आर एक्सपर्ट, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हम लोग डील करते हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, तो ये भी इतना कोई दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट. 1 to 64, 65, 64 है अभी लास्ट ऑर्डर. सो नाउ ये जो बैंक अकाउंट्स ओपन करने हैं इन केस ऑफ एरिया शेयर एंड इन केस ऑफ रेवेन्यू शेयर, डिफरेंट बैंक अकाउंट है. तो एरिया शेयर के लिए ये कलेक्शन बैंक अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट 100%, 70%, 30%, ये 3 बैंक अकाउंट ओपन करने हैं. ये किस किस को ओपन करने हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल डेवलपर है एंड सोसाइटी है. एक सोसाइटी के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है एंड नाउ सोसाइटी को तो लैंड ओनर करके ऐड करना पड़ता है. तो इन दिस केस इज इट obligatory on a society also to open the bank account as far as because they are landowner? The answer is no. As far as society is not having any independently, society is not going to sell any area. उनके मेंबर को कुछ एरिया मिल रहा है दैट इज ओके, बट सोसाइटी को स्पेसिफिकली फ्लैट्स अगर मिल रहे हैं, लेट्स से 5 फ्लैट 10 फ्लैट है जो सोसाइटी बेच सकती है इन ओपन मार्केट, अगर ऐसा कोई केस है तो सोसाइटी को ये बैंक अकाउंट्स ओपन करना इज ऑब्लिगेटरी. अगर ऐसा कोई नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक सेपरेट एरिया that can be freely sold in the open market by the society, in that case it is not obligatory. Even in case of landowner, another case wherein there are, let's say there is a landowner, abhi landowner ko kuch 25 flats ja rahe hain, 70 flats are being sold by the developer. In this case, yes, landowner will have to open these 3 bank accounts and he'll have to take this. If the landowner gives a undertaking that he is not going to sell area apportioned to him before the receipt of occupancy certificate, then in that case also opening of these 3 bank accounts is not obligatory. Now in case of revenue share, one more bank account will have to be opened, that is RERA designated master account. So RERA all other 3 accounts remaining the same, that is collection bank account, separate bank account and transaction bank account. So let's say there are 2 parties who are going to share the revenue in the ratio of 60 to 40. So party A and party B, they'll open first these 3 bank accounts, 100, 70 and 30. And now party A, let's say assume that the party A is a designated promoter. So party A will have to open this RERA designated master account, wherein 100% collection from the allottees will receive. From that, in according to their revenue share, the 60% will go to the RERA designated collection bank account of party A and RERA designated collection bank account of party B. 40% will get credited, and from there that will become again 70 and 30. अभी इसका nomenclature, this is most important because it's a very common query. Finance department raise करता है जब भी registration application file होता है. इसका नाम कैसा होना चाहिए बैंक अकाउंट का? तो RERA has very specifically given that in case of collection bank account, name of the promoter जो है वो होना चाहिए, प्लस उसमें RERA designated collection bank account ये वर्ड्स आने चाहिए और उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम आना चाहिए. Similarly 70%, similarly 30%. So the thought or idea behind that is कि ये नाम से आपको चेक लेना है, इतना बड़ा नाम होगा तो भी चलेगा, but then you will not be able to deposit the money of project 1 into the project 2. You will have to deposit it in that particular RERA designated bank account only. अभी इसका एग्जांपल, लेट्स से प्रमोटर का नाम है एक्सेलेंट डेवलपर्स और प्रोजेक्ट का नाम है एक्सेलेंट हाइट्स.
तो ये नाम कैसे रहेंगे? तो ये नाम होगा पहले डेवलपर का नाम, दैट इज एक्सेलेंट डेवलपर रेरा डेजिग्नेटेड कलेक्शन बैंक अकाउंट फॉर excellent heights, that is project ka naam. Similarly, excellent developer RERA designated separate bank account for excellent heights, and excellent developers RERA designated transaction bank account for excellent heights. So that company का नाम आ गया, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, पर्टिकुलर अकाउंट आ गया, वो प्रोजेक्ट का जो चेक है वो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाएगा. Yes. Day one, you have to get even a certificate from a bank, certifying that these three bank accounts are open, और उनके अकाउंट नंबर्स भी आपको उस सर्टिफिकेट में उनको मेंशन करना जरूरी है. उसका नॉमेनक्लेचर क्या है वो भी मेंशन करना जरूरी है. See what is happening कि there are some for the many banks there are character का limitations. While opening a bank account, let's say only 40 characters are permitted या 50 characters are permitted, 100 characters are permitted. तो ऐसे केस में they are understanding कुछ एक short किया and declaration दे दिया कि there is a constraint of only 50 words in the for account opening in the bank, and therefore we have abbreviated these two things. So that is being accepted as of now by RERA, but RERA is instructed to the banks also to increase that capacity of the words. Now नॉन निगोशिएबल क्लॉजेस, जो दिलीप सर ने बोला था कुछ क्लॉजेस नॉन निगोशिएबल है एग्रीमेंट फॉर सेल के, कुछ क्लॉजेस जो है वो डेविएट कर सकते हैं. तो उसमें से नॉन निगोशिएबल क्लॉजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट इज फोर्स मेजर क्लॉज. इसके लिए मैं सब उसका जो भी पर्टिकुलर ऑर्डर है वो ऑर्डर नंबर भी मैंने डाला है. फोर्स मेजर इसकी हम लोग को प्रोजेक्ट डिले हुआ तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इसके पहले उसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट, नॉन अवेलेबिलिटी रेती नहीं मिला मेरे को, ये नहीं मिला, मतलब कुछ भी हुआ तो मेरे वो कंट्रोल में नहीं है, दैट इज फोर्स मेजर क्लॉज रहता था. नाउ रेरा स्पेसिफाइड फोर्स मेजर क्या हो सकता है. तो ओनली एक्ट ऑफ गॉड, वॉर, पैंडेमिक, एंडेमिक, या फिर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कोई ऑर्डर रहेगा, स्टे ऑर्डर किसी कोर्ट का या अथॉरिटी का, then in these cases only it will be considered as a force majeure. Otherwise all other conditions are not considered as a force majeure. Then comes the land conveyance and structure conveyance. I think somebody from this first row asked this question about land conveyance and structure conveyance. So very simple, अगर स्टैंड अलोन बिल्डिंग है तो ओसी आने के 3 महीने के अंदर अंदर कन्वेंस देना है. इन केस लेआउट है, मल्टीपल बिल्डिंग्स है, आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रजिस्टर किए हैं, तो इन दैट केस एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसका अगर ओसी आ जाती है तो विद इन 3 months फ्रॉम द रिसीट ऑफ ओसी स्ट्रक्चर कन्वेंस करना है, एंड विद इन 3 months फ्रॉम द रिसीट ऑफ ओसी ऑफ द लास्ट बिल्डिंग इन द लेआउट. आई रिपीट, विद इन 3 months ऑफ द रिसीट ऑफ ओसी ऑफ द लास्ट बिल्डिंग इन द लेआउट, उसके 3 महीने के अंदर अंदर लैंड कन्वेंस जो है वो एपेक्स बॉडी को देना है. ओके, सो कन्वेंस का मैटर एकदम सिंपल है. स्टैंड अलोन बिल्डिंग विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ओसी, मोर देन वन बिल्डिंग, लेआउट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, तो जो बिल्डिंग जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहा है विद इन 3 months स्ट्रक्चर कन्वेंस देना है. विद इन 3 months ऑफ द रिसीट ऑफ ओसी ऑफ द लास्ट बिल्डिंग आपको पूरे लेआउट का लैंड कन्वेंस जो है वो एपेक्स बॉडी को देना है. सॉरी आई एम नॉट एबल टू. That's a different question altogether, where there is receipt is not, OC itself is not received, so there can be many reasons for not receipt of OC. Okay, builder is not giving you the conveyance, of course you have always have an option to file a complaint with the RERA authority for if this particular condition is violated. Not part OC, full OC of that particular building. Full OC of that particular building, not a part OC. Perfect. Only structure is conveyed. Then next is defect liability period. So बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद लीकेज सीपेज होता है, वर्कमैनशिप डिफेक्ट है, लेबर डिफेक्ट है, कुछ कोई भी डिफेक्ट है,
तो डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल टिल 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग पोजेशन. 5 साल तक वो डेवलपर के ऊपर है. एंड दिस इज अ नॉन निगोशिएबल क्लॉज इन द एग्रीमेंट. देन वेरिएशन क्लॉज. एरिया अगर वेरी होता है, जो एरिया लिख के दिया एग्रीमेंट में और एक्चुअल में एरिया अलग है, तो इन दैट केस क्या करना चाहिए? तो उसका रेट कैसा डिसाइड होगा पर्टिकुलर इसका? तो जो एग्रीमेंट में आपका टोटल कंसिडरेशन है डिवाइड बाय टोटल एरिया, जो भी आता है पर स्क्वायर फीट का, एक तो लेना है या देना है. ज्यादा रहेगा तो देना है, कम रहेगा तो लेना है. देन टर्मिनेशन क्लॉज. सो ओके, सो वेरिएशन क्लॉज जो है, अगर आपके एग्रीमेंट में एक पर्टिकुलर एरिया लिख के दिया है 500 स्क्वायर फीट, और एक्चुअल में जब भी वो एरिया मेजर किया, तो लेट्स से इट केम आउट टू बी 490 स्क्वायर फीट या 510 स्क्वायर फीट. सो इन दैट केस जो एडिशनल एरिया है, हाउ टू चार्ज, उसका पैसा कैसा लेना है? तो डेवलपर बोलेगा अरे तभी बेचा था, तभी तो 12,000 का भाव. तो मैंने तो नहीं बोला था ना 10 फुट जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाओ. तो इन दैट केस वो जो कंपेंसेशन है वो कैसा डिसाइड करना है? तो जो आपका टोटल कंसिडरेशन रहेगा एज पर एग्रीमेंट डिवाइड बाय आपका टोटल एरिया, एक आपको पर स्क्वायर फीट का प्राइस आ गया. दैट पर स्क्वायर फीट प्राइस ओनली कैन बी चार्ज्ड. In case of lesser area given to the LOT, developer will have to pay that amount only. In case more area is given to the LOT, LOT will have to shell out money at that particular rate only. RERA carpet. Perfect, perfect, perfect. So termination clause. Termination agree. सी एरिया कैनॉट बी चेंज्ड. वंस आपका एक बार अप्रूवल आ गया है, तो उसके बाद में अगर एरिया चेंज होता है, तो यू हैव टू गेट 2/3 कंसेंट ऑफ द अलॉटेस. देयर कैन बी मेनी रीजन. थोड़ा फ्रैक्शनल कुछ चेंज होता है, कोई पिलर जो रहता है उसका थोड़ा जो मतलब उसको आधा मीटर या थोड़ा सा कुछ ये कर दिया बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चरल नेसेसिटीज. अगर कुछ चेंज होता है उसके वजह से अगर कुछ फर्क पड़ता है एरिया में, तो ही, क्योंकि एक्चुअल एरिया में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है एज कम्पेयर टू व्हाट एरिया इज प्रॉमिस्ड इन द एग्रीमेंट फॉर सेल. सो इन दैट केस termination clause. So termination clause, agreement cannot be terminated at the whims and fancies of any party, not as a developer or nor the LOT. So इसके लिए condition दिया अभी within, मतलब जैसे there must be 3 payment defaults on the part of the LOT. LOT ने 3 payment default अगर करता है, तो promoter will be able to send a notice saying that ये आप 15 दिन का नोटिस या 1 महीने का नोटिस कि you correct this defect. उसके बावजूद अगर वो पेमेंट नहीं करता है, देन द एग्रीमेंट कैन बी कैंसल्ड. इफ एट ऑल द एग्रीमेंट इज कैंसल्ड, कैंसलेशन चार्जेस जो है वो डिडक्ट करके बचा हुआ अमाउंट जो है वो विद इन 30 days डेवलपर विल हैव टू पे टू द LOT, प्रोवाइडेड LOT विल हैव टू डू कैंसलेशन deed. कैंसलेशन चार्जेस, आई कम टू दैट. आई हैव सेड दिस. पार्किंग क्लॉज. पार्किंग का जैसे मैंने आपको बोला, पार्किंग का बहुत इश्यू हो रहा था, इसलिए पार्किंग कहाँ पे देना है, कितना, कौन सा पार्किंग नंबर है, उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, ये सभी दिया है. डे 1 को देना है. बैंक अकाउंट क्लॉज. जो अभी बैंक अकाउंट के नॉमेनक्लेचर हमने देखे, वो बैंक अकाउंट आपको 100% वाला जो बैंक अकाउंट है जिसमें पेमेंट करना है प्रमोटर को, उसका वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो भी एग्रीमेंट में डालना नेसेसरी है. एजेंट का क्लॉज, अभी इसकी कहानी अलग है. एजेंट का क्लॉज जो है, सी पहली बात तो रेरा केम अप विद द ट्रेनिंग. अगर आपको अभी रियल एस्टेट एजेंट बनना है, उसका रजिस्ट्रेशन लेना है, तो यू हैव टू फर्स्ट डू 20 आवर्स का ट्रेनिंग, देन यू हैव टू गिव एग्जाम. वो एग्जाम पास करना है, उसके बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद में रेरा एजेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है. रेरा एजेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो फिर से 5 साल में हर बार रिन्यू करना है. उसके लिए पैसा भरना है, 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया, जो भी उसका ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से. तो ये एजेंट लोग बोलने लगे आप इतना चीजें हमसे करवा रहे हो, ये 20 आवर का ट्रेनिंग करना है, ये उम्र में ये एग्जाम देना है, पढ़ाई करना है, तो हमारा कम से कम ब्रोकरेज तो सिक्योर करो, इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो. तो फिर देन रेरा केम अप विद दिस ऑर्डर ऑन 22 अक्टूबर 2024 सेइंग दैट जो भी जिसी ने भी एजेंट का सर्विस, वो एलओटी रहेगा या प्रमोटर रहेगा, जिस किसी ने भी एलओटी एजेंट का सर्विस लिया रहेगा, तो उसको उसका ब्रोकरेज का पेमेंट जो है वो कमीशन का पेमेंट करना पड़ेगा. एमिनिटीज क्लॉज.
मोस्ट लिटिगेटेड पॉइंट अगेन, एमिनिटीज का जो क्लॉज है वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट में एलोटीज डेवलपर को डे वन को एमिनिटीज जो है वो स्पेसिफाई करनी है। वो अगर बोल रहा है स्विमिंग पूल लेना है तो स्विमिंग पूल उसमें लिखना है, उसमें लिख के देना है, उसका पोजीशन कब मिलेगा। पुणे में जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहां पे यूजुअली ऐसा होता है, आज घर ले लिया, उसने लिख के दे दिया था स्विमिंग पूल एंड क्लब हाउस, लेकिन वो कब मिलेगा, वो लास्ट बिल्डिंग कंप्लीट होगा तब। लास्ट बिल्डिंग कंप्लीट कब होगा, 10 साल बाद, 5 साल बाद। आज नहीं मिल रहा है, ये डिस्क्लोजर दे दो। तो आपको स्विमिंग पूल दे रहे हो, ठीक है, कौन से डेट को देने वाले हो वो डेट वहां पे लिखो, उसका एरिया क्या रहेगा वो दे दो। स्विमिंग पूल बोल दिया और छोटा बेबी पूल दे दिया, वो वैसा नहीं चलेगा, उसका लेंथ ब्रेड्थ सब स्पेसिफाई करो कि कितना उसका है, क्या रहेगा उसका। क्लब हाउस दे रहे हो तो क्लब हाउस में, क्लब हाउस क्या रहेगा, एमिनिटीज में लिखा रहता है क्लब हाउस, योगा रूम, किटी पार्टी रूम। तो जो 6 से 8 में वही रूम योगा रूम है, दोपहर में वही किटी पार्टी रूम हो जाता है, और शाम को वही क्लब हाउस हो जाता है। तो स्पेसिफाई, आप क्लब हाउस बोल रहे हो तो क्लब हाउस उसका एरिया क्या रहेगा, उसका पोजीशन कब देंगे, सोसाइटी को हैंड ओवर कब करेंगे, ये सब चीजें डे वन को लिख के देनी है। तो the whole idea, whole point behind making these clauses non-negotiable is that to reduce the number of litigations that are coming up with the Maharera Authority. So I still remember the second chairman of Maharera Authority, Ajay Mehta sir, उन्होंने बोला था कि ये महारेरा को रेगुलेट करना, मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रेगुलेट करना, ये हमारा काम है। बट थैंक यू, बट महारेरा को ये सब झगड़े आपके सॉल्व करते बैठना, लिटिगेशन करना, ये हमारा मेन काम नहीं है। इट इज वन ऑफ द वर्क, बट द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन वर्क इज टू रेगुलेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो बिकॉज ऑफ दीज क्लॉजेस में भी जो लिटिगेशंस है वो कम होंगे, ऐसी आशा करते हैं इन फ्यूचर। So recent changes जो रेरा लेके आए हैं, there are going to be 3 different tabs that you have to fill in: legal, finance and technical. I have specified the orders. Hmm? Yes. Mentioned in the order which shall be retrospective, which shall have a retrospective effect and which shall have a effect from that particular date. So let's say order number 56, 3 bank account open करने का. So that order is applicable to only those projects which are registered on or after 1st July 2024. Okay. So it has been mentioned, but yes, there are funny situations where it has not been mentioned. For example, deregistration of the project. तो डीरजिस्ट्रेशन के लिए जब तक रेरा का सर्कुलर नहीं आया 2023 में ऑर्डर, तब तक कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो उसके पहले जिस किसी ने भी किया था, एक लेटर डाल के डी रजिस्टर हो गया मेरा प्रोजेक्ट, या कुछ ऑर्डर इनवर्ट कर दिया, कुछ लेटर इनवर्ट कर दिया, बाकी क्योंकि प्रोसीजर ही स्पेसिफाइड नहीं था। बट देन नाउ उन्होंने सब खोद खोद के निकाल रहे हैं, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट है सबको 50,000 का पेनल्टी इम्पोज किया, सबको नोटिस भेज दिया। वो लोग बोल रहे हैं अभी जब ये ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो वैसा लिखो, हम लोग जाके चैलेंज करते हैं कोर्ट में, लेकिन ऑर्डर इज साइलेंट अबाउट इट। We'll take up the questions. Let me just first complete the slides. सो लीगल डिपार्टमेंट, सो लीगल डिपार्टमेंट के अंडर कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो टाइटल रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट में भी देयर यूज्ड टू बी फर्स्ट बहुत बल्कि टाइटल के डॉक्यूमेंट्स आते थे। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के द फनी पार्ट वाज कि ये समझ में नहीं आता था कि टाइटल किसके पास है, बहुत कुछ लिखा हुआ रहता था लिटरेचर। तो अगर किसी को एलओटी को अगर ये समझना है कि इसमें सच में लिटिगेशन है या नहीं है, इसमें ओनर कौन है, अभी क्या ऑर्डर है, क्या पोजीशन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो टाइटल रिपोर्ट का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रेरा ने स्पेसिफाई करके दे दिया है कि ये आपका पर्टिकुलर फॉर्मेट है टाइटल रिपोर्ट का। बहुत झगड़ा करना पड़ता है, बट देन आई गिव यू अ स्मॉल, मतलब छोटा सा एक एग्जांपल। क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए डेवलपर से एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसको बोला टाइटल रिपोर्ट चाहिए, 1 महीना लगेगा। एडवोकेट नहीं सुनेगा, वो बोलेगा पब्लिक नोटिस पब्लिश करो, ये करो, मैं जाके सर्च लेगा, 30 साल का ये सब करेगा। तो सर मैं एग्रीमेंट फॉर सेल का फॉर्मेट नहीं, मेरा एडवोकेट 3 दिन बाद आने वाला है, उसका कोई किधर बाहर गया है, शादी है उसमें, तो 3 दिन बाद फॉर्म थी, कल मिल जाएगा ना, क्या चाहिए आपको,
सीए सर्टिफिकेट ना कल मिल जाएगा आपको, आप बता दीजिए आपको क्या लिख के देना है, आप लिख के दे दो, आपको कल मिल जाएगा। सो ये थोड़ा सा सुन के दुख हो जाता है। तो दिस इज टाइटल रिपोर्ट रेरा के फॉर्मेट में, जहाँ पे ओनर्स ऑफ द लैंड जो है वो स्पेसिफाई किया हुआ रहता है, स्पेसिफिकली देना है। देन दिस एग्रीमेंट फॉर सेल, फाइनेंस का इनकम्बरेंस जो रहता है, मतलब अगर कोई लोन है प्रोजेक्ट पे तो वो लोन जो है वो आपको स्पेसिफाई करना है। देन डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीमेंट फॉर सेल, अलॉटमेंट लेटर, अगर आपने कुछ क्लॉजेस डेविएट किए हैं तो वो क्या डेविएट किए वो आपको लिख के दे देना है। देन जैसा मैंने आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, सो कैंसलेशन चार्जेस, बहुत बार ये सवाल था कि कैंसलेशन चार्जेस क्या चार्ज कर सकता है डेवलपर। सो फॉर दिस two conditions, whether the agreement for sale is executed or not executed. So first, not executed. So in that case, Maharera has given already this allotment letter में एक conditions लिख के दे दिया है कि अगर वो booking जो है वो 0 to 15 days में cancel होता है from the date of booking, if that particular booking is cancelled by the allottee within 0 to 15 days, no cancellation charges can be charged. 16 to 30 days, 0.5% of the agreement value. 31 to 45 days, 1% of the agreement value. 46 to 60, 1.5% of the agreement value. And maximum cancellation charges the developer in case of cancellation where agreement to sell is not executed is 2% of the agreement value. In case the agreement for sale is executed, so in that case, whatever written in the agreement for sale shall stand. The agreement value, whole of the amount लिखा है, that will be applicable. So now order number 38 मैंने आपको already बता दिया. Force majeure clause I've already told you. Time period for formation of association of allottees. It is within 3 months from the date 51% of the 51% of the total units are booked. Total units, let's say building में एक particular apartment में 100 units है, so the moment 52 units are booked, 51 units are booked, in that case you have to start the procedure for formation of the association of allottee. Defect liability, variation, termination, I've already told you. पेमेंट शेड्यूल, बहुत बार ये सवाल आता है कि पेमेंट शेड्यूल जो रेरा ने दिया है वही लेना है या उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं. So let me tell you, payment schedule is not non-negotiable clause. It is a matter between allottee and the promoter. जो भी दोनों मतलब whatever they mutually decide, that can be the payment schedule. अगर बोला है day 1 पे पूरा का पूरा पैसा देना है, that is correct, no problem. लेकिन आपको वो एग्रीमेंट में लिखना है. सैंक्शन प्लान में अगर चेंजेस होते हैं तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 comes into the effect of the RERA. 2/3 कंसेंट जो है अलॉटीज का वो आपको लेना जरूरी है. आप एग्रीमेंट में ये नहीं डाल सकते कि मैं कुछ भी चेंज करूंगा, मैं मैक्सिमम एफएसआ यूटिलाइज करूंगा, मैं चांद तक बिल्डिंग बांधूंगा. नो नो फनी बिजनेस. यू हैव टू स्पेसिफिकली राइट कितना फ्लोर तक आप बांधने वाले हो, what is FSI that you are going to utilize. If you exceed that, आपका 31 floor था, now you are planning to go to 32nd floor, you have to get 2/3 consent of the allottees. Otherwise, you will not be able to change that on the RERA web page. Parking, interest on delayed payments. Interest on delayed payments cannot be 1.5% per month, 18%, 24%. It has to be SBI MCLR rate plus 2% only. तो अगर अलॉटी लेट करता है पैसा देने में तो दैट इज द ओनली रेट दैट कैन बी चार्ज्ड. अगर डेवलपर लेट करता है पोजीशन देने में तो दैट इज द ओनली रेट व्हिच कैन बी चार्ज्ड फॉर गिविंग द कंपेंसेशन फॉर डिलेड पोजीशन. सो यूजुअली 8.5% के बीच में वो रिवॉल्व करता है. अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रेट घटा दिया है तो, लेकिन वो 10% to 11% के बीच में रिवॉल्व करता है. देन ट्रांसफर ऑफ द प्रोजेक्ट टू थर्ड पार्टी. आज बंदा गया, बुकिंग किया, वहां पे एबीसी एंटरप्राइजेस का नाम था, सब ब्रांडिंग वगैरह किया हुआ था. वो 6 महीना बाद देखने के लिए गया मैं बुकिंग का क्या हुआ, तो यहाँ पे XYZ एंटरप्राइजेस आ गया. पहला वाला किधर गया मालूम नहीं. उसको बोला, वो बोला पैसा किसको दिया, बोलते एबीसी को दिया. उसको जाके पूछते था बुकिंग का क्या हुआ, मेरे को नहीं पूछने का. अब ये चेंज हो चुका है, आपको बुकिंग करना तो मेरा ये रेट है, ये पैसा दो, फिर बात करते हैं. Such kind of situation, if you want to transfer the project to a third party, section 15 comes into the effect of the RERA. And
2/3 consent of the allottees and prior approval from the RERA authorities necessary to change the promoter. नो ब्लैंकेट कंसेंट, जो मैंने बोला ब्लैंकेट कंसेंट नहीं ले सकते, कुछ भी चेंज करूंगा या फिर आपको जो भी देना है वो स्पेसिफिकली लिखना है, उसमें अगर चेंज है तो यू हैव टू टेक कंसेंट. नाउ फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये डॉक्यूमेंट है, अपना जो मेन फॉर्म है वो यही डिपार्टमेंट चेक करता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी लैंड कॉस्ट की जो क्वेरीज है दैट रेरा हैज स्टार्टेड रेजिंग, तो लैंड कॉस्ट आपको स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली वहाँ पे मेंशन करनी है. लैंड ओन्ड है तो जैसा दिलीप सर ने बोला ASR वैल्यू यू हैव टू पुट दैट. अगर इट इज अ डेवलपमेंट एग्रीमेंट है और आपने कुछ पैसा दिया है, लैंड ओनर है, उसको कुछ नॉट अ रिफंडेबल डिपॉजिट, बट अदर देन दैट आपने कुछ भी पैसा कंपेंसेशन दिया रहेगा, तो दैट कंपेंसेशन हैज टू बी मेंशन इन दी फॉर्म 3. बहुत दुख होता है अपना फॉर्म कोई दूसरा चेक करता है, मतलब देयर आर नो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर चेकिंग दैट, देयर आर सम अदर पीपल हु डू चेक दैट. समटाइम्स दे yes, they do raise funny queries, but sometimes the forms are also funny, which are certified by our own members. Then estimated cost, form 2 में जो estimated cost लिखा है वो cost आपका form 3 में मैच होना चाहिए. estimates I'm talking about, not incurred. incurred तो books के हिसाब से अपने को देना है. टेक्निकल डिपार्टमेंट कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देखेगा, एक साल से पुराना कमेंसमेंट सर्टिफिकेट रहेगा तो बोलेगा 10th कंप्लीशन आप लेके आओ. सैंक्शन प्लान्स, जो भी सैंक्शन प्लान्स दिए हैं आपको, दैट यू हैव टू अपलोड ऑन रेरा वेब पेज विद इन 5 MB का साइज में. 5 MB आपको वहाँ पे बिल्डिंग भी हाईलाइट करना है, आपका FSI हाईलाइट करना है, एरिया हाईलाइट करना है, पार्किंग हाईलाइट करना है, सब चीजें आपको वहाँ पे हाईलाइट करके वो प्लान जो है वो अपलोड करना है. सो टू स्टार्ट दी रेरा रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है प्लान्स का वो आना चाहिए. प्लान देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये बिल्डिंग कम से कम कितने फ्लोर का है. बाकी ठीक है, फ्लोर उसका कॉम्पोजिशन समझना चाहिए, इसमें बेसमेंट है क्या, इसमें पोडियम्स है क्या, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, फ्लैट्स कितने हैं, गिनने का एरिया कैलकुलेट करने का वो नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन फ्लैट्स 4 फ्लैट है एक फ्लोर पे, 6 फ्लैट है, 5 फ्लैट है, ये सब इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्लान देख के आना चाहिए. देन फॉर्म 1 आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट रहता है. ये जो ये दिए है, नाम दिए इस फॉर्म को, फॉर्म 1 2 3 ऐसे नहीं दिए, किसका फॉर्म पहले आना चाहिए उसके हिसाब से दिया है. फॉर्म 1 आर्किटेक्ट का सबसे पहले आना चाहिए, दूसरा आर्किटेक्ट का. यूजुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, पहला CA का आता है उसके हिसाब से इंजीनियर उसका बनाता है टू मैच द कॉस्ट. अभी उनको कितनी बार बताया कि कॉस्ट मैच नहीं करना है, आपको जो एक्चुअल में जगह पे जो काम हुआ है उसके हिसाब से आपका टेक्निकली क्या काम क्या कॉस्ट है. तो नहीं, आप CA का सर्टिफिकेट लेके आओ, उसने क्या कॉस्ट दिया है मैं देखता है वो कॉस्ट में देता है. ठीक है. देन इंफॉर्मेशन इन एप्लीकेशन कंसर्न टू टेक्निकल जो है सैंक्शन बिल्डिंग, सैंक्शन फ्लोर, पार्किंग, ये सब चीजें. सी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं रेरा में, दे ऑल आर फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम MCGM, बिल्डिंग परमिशन, BP डिपार्टमेंट जो है 30-35 साल ये सब परमिशन देने का काम उन्होंने किया है, वो सब लोग हैं वेरी एक्सपर्ट्स, वेरी एक्सपर्ट्स. तो आपने वो कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए जब भी हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं तभी. देन डेविएशन रिपोर्ट, ये जो है वो टेबुलर फॉर्म में हम लोग सबमिट कर सकते हैं. फिर उसका फॉर्मेट जो है ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया नहीं है, बट देन क्लॉज नंबर, पेज नंबर, वो पर्टिकुलर क्लॉज, ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए. देन जो भी आपके डेविएटेड क्लॉजेस है वो आपको AFS में येलो कलर में हाईलाइट करने हैं. येलो में कौन से भी कलर में करो, लेकिन वो दिखना चाहिए और हाईलाइट दिखना चाहिए. देन डी रजिस्ट्रेशन, अभी अब तक रजिस्ट्रेशन का हुआ, डी रजिस्ट्रेशन एक बार रजिस्टर किया हुआ जो प्रोजेक्ट है वो आप डी रजिस्टर भी कर सकते हो. अभी इसमें सबसे पहले ये डी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजंस देखने से पहले बहुत बार ऐसी क्वेरी आती है कि मैंने 2018 में मेरी 5 बिल्डिंग थी, पांचों की पांचों का मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है, लेकिन अभी तक उसमें से जो 2 बिल्डिंग है उसका मैंने काम ही स्टार्ट नहीं किया है, तो मेरे को वहां से हटा के उसका नया नंबर चाहिए. तो इसको सोल्यूशन नहीं है. एक बार आपने वो वहां पे रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको वही रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है. बिल्डिंग 1 का जो बंदा है वो आज तक आपको तकलीफ देगा जब तक आपका 5वां बिल्डिंग कंप्लीट ना हो, आप OC ना दो, प्रोजेक्ट हैंड ओवर ना करो. नाउ हाउ टू एडवाइज द क्लाइंट कि व्हाई द पर्सन शुड गो फेज वाइज. मल्टीपल फॉर्म 3 जाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, वो बोलेंगे तो मेरे को नहीं करना, मेरे को एक ही फॉर्म 3 चाहिए. बट देन उसको समझाना पड़ेगा. लेट्स से देयर आर 5 बिल्डिंग्स एंड यू रजिस्टर्ड ओनली 2 बिल्डिंग्स सेपरेटली. तो वंस दोस 2 बिल्डिंग्स आर कंप्लीट, उसका OC आ गया,
तो उसका जो भी पैसा है दैट मनी कैन बी फ्रीली यूज्ड एनीवेयर. जाके मर्सिडीज ले लो, फॉरेन ट्रिप करके आओ, नया बिल्डिंग, डेवलपर के लैंग्वेज में सोने का टुकड़ा दिख रहा है कहाँ पे जमीन का, ले लो. Nobody is going to ask you a question. Moment you register all 5 buildings together, unless fifth building is complete, उसका ओसी नहीं आता है तब तक इवन फर्स्ट बिल्डिंग जो कि आपने 4 साल पहले ओसी देके पोजीशन दे दिया है लोगों को, उसका भी पैसा आप नहीं वापस सकते. वो इसी प्रोजेक्ट में आपको यूज करना है. ये लैंग्वेज बोलोगे, बोलेगा 5 प्रोजेक्ट रजिस्टर करो अलग अलग. दो या 3 भी नहीं करना, हर एक बिल्डिंग अलग अलग करो. सो दिस इज वन. सेकंड इज आपका जो पेनल्टीज है रेरा में फॉर नॉन कंप्लायंस. अभी कंप्लायंस है तो नॉन कंप्लायंस 101% होता ही है. तो जो पेनल्टीज है, पेनल्टीज ऑल्सो आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट. 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. तो आज तक रेरा ने ऐसा कोई बड़ा पेनल्टी इशू नहीं किया है. जितना मेरे को मालूम है, एक प्रोजेक्ट में 2 फ्लैट बेच के डेवलपर गया था, तो तभी गौतम चटर्जी साहब ने 43 लाख रुपीस पेनल्टी लगाया था. कुर्ला में प्रोजेक्ट था इसलिए. बट देन इससे ज्यादा मैंने आज तक नहीं सुना है. और एक बार वो इसको पिरामिड डेवलपर्स को 50 लाख का पेनल्टी लगाया था. प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं डाला था. 2017 में वो हुआ था तभी. Otherwise, RERA is not imposed, but then still we can, to mitigate the risk of high penalties being issued on the project, this can be advised. Okay, so how to register a project? So उसके लिए 10th February 2023 का RERA का एक ऑर्डर है. उस ऑर्डर के हिसाब से एप्लीकेशन जो है डी रजिस्ट्रेशन के लिए, that can be made only in case of following conditions. So first is नॉन वायबल, मतलब प्रोजेक्ट नॉन वायबल हो चुका है फॉर द रीजंस लैक ऑफ फंड्स, या प्रोजेक्ट फाइनेंशियली नॉट वायबल, डिस्प्यूट्स इन फैमिली पार्टनर्स, चेंज इन प्लानिंग अथॉरिटी नोटिफिकेशन कुछ आया जिसके वजह से अभी बिल्डिंग बांध ही नहीं सकते, या फिर बहुत कम, मतलब फिजिबल नहीं है प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ भी होता है. तो इन दैट केस यू कैन गो एंड फाइल अ डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विद द रेरा अथॉरिटी. इन केस प्री रिक्विजिट है, 0 अलॉटीज होने चाहिए. इन केस देयर आर अलॉटीज, तो रेरा बकायदा उसका हियरिंग लेता है. अगर आपके प्रोजेक्ट में 0 अलॉटीज है तो रेरा हियरिंग नहीं लेगा. आपका एप्लीकेशन जो है 1 मंथ का पब्लिक नोटिस जो है वो पब्लिश होगा, और उसके बाद में अगर आपका कंप्लायंस और बाकी सब चीजें ठीक ठाक है, एप्लीकेशन ठीक ठाक किया है, तो हो जाएगा. अगर उसमें अलॉटीज है तो इट विल बी अलॉटेड टू वन ऑफ द मेंबर, चेयरमैन या फिर वन ऑफ द मेंबर ऑफ द रेरा अथॉरिटी. दे विल टेक द हियरिंग, दे विल अंडरस्टैंड कि आपने अलॉटीज को कैसे सेटल किया है. दे विल मेक श्योर कि देयर आर नो अलॉटीज का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, और उसके बाद में ही वो आपको प्रोजेक्ट डी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर देंगे. सो अगर वो ये जो प्रोजेक्ट है डी रजिस्ट्रेशन जो करना है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का समझो पार्ट है. सो लेट्स से देयर अपने रजिस्टर लेंगे बिकॉज ऑफ सम अथॉरिटी, अभी वो नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते. तो इन दैट केस पहले 2 बिल्डिंग में जो अलॉटीज है उनका 2/3 कंसेंट भी आपको लेना है. इसका एप्लीकेशन रेरा ने दिया है, और ये जो फॉर्मेट है इसी ऑर्डर में, जो ऑर्डर मैंने मेंशन किया है, ऑर्डर नंबर 42 2023, इसमें वो फॉर्मेट्स भी मेंशन किए हैं. ये जो ऑर्डर है, दिस फॉर्मेट्स हैज टू बी मेल्ड ऑन दिस मेल आईडी दैट आई हैव मेंशनड .gov.in. एंड इसके बाद में जो लीगल विंग है रेरा की, दैट scrutinizes the application, and in case if anybody is aggrieved by the order of the RERA of the registration, that person can very well file a complaint with the RERA authority. Now सबसे important QPRs. So QPRs के लिए first is order number 33 जो है महारेरा का, उसके हिसाब से महारेरा ने QPRs have been categorized. So in very simple language, let me tell you 3 categories: quarterly, annual, and incidental. So what is quarterly? Very simple to remember also. Form 1, 2, 3 and declaration of sold book inventory. These are the these are the quarterly compliances. Annual compliances, Form 2A and Form 5. Form 2A is a quality control site engineer का certificate है, and Form 5 is अपना ही statutory auditor का certificate है. तो ये एनुअल है. फॉर्म 2A सबमिट करने का लास्ट डेट विदिन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 30 जून. फॉर्म 5 सबमिट करने का लास्ट डेट विदिन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 30 सितंबर. ओके, ये 2 आपको एनुअल देना है. इंसिडेंटल इज
लेट्स से आपने जब भी प्रोजेक्ट रजिस्टर किया, आपका ओसी जो था वो 5th फ्लोर, सीसी जो था वो 5th फ्लोर तक था, अभी आपको फर्दर सीसी मिल गई है 12th फ्लोर तक। इंसिडेंटल अपडेट जैसे ही आता है अपडेट करो। जब भी प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट पे लोन नहीं था, देयर वाज नो फाइनेंशियल एनकम्बरेंस, बट एज ऑफ नाउ द प्रमोटर हैज गॉट द प्रोजेक्ट फाइनेंस, और वो जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज कर दी है। इंसिडेंटल अपडेट रेरा पे अपडेट कर दो। जब भी रजिस्टर किया तभी लिटिगेशन नहीं था, अभी कुछ लिटिगेशन आ गया है, इंसिडेंटल अपडेट, ये आपको रेरा के वेब पेज पे अपडेट करना है। सो आई रिपीट 3 अपडेट्स: क्वार्टरली, एनुअल, इंसिडेंटल। क्वार्टरली फॉर्म 1 2 3 सोल्ड बुक इन्वेंटरी, एनुअल फॉर्म 2A एंड फॉर्म 5, एंड इंसिडेंटल जो मैंने आपको बोला जो भी चेंज हो रहा है प्रोजेक्ट में, दैट यू हैव टू इंटीमेट टू दी, sorry, due date for form 2A, the due date of submission is 30th June, that is within 3 months from the end of the financial year, and for form 5 within 6 months from the end of financial year, that is 30th September. QPR, it is 20th of the every subsequent quarter. So there are 4 financial quarters that are specified by RERA authority: Jan to March, April to June, July to September, and October to December. So in these 4 quarters, you have to update the project. The due date for updating the project is the 20th of the subsequent month. That is 1st April to 31st March वाला जो quarter है उसका 1st April to 30th June का जो quarter है उसका last date है 20th July and so on. इसके हिसाब से अपडेट होना चाहिए। अभी कभी कभी ये डेट नहीं हो रहा है क्योंकि जीएसटी का आपका सब रिटर्न वगैरह ये सब चीजें 18th को जाती है, तो कभी कभी वो आगे चला जाता है। दैट्स ओके, यू कैन डू दैट, मतलब उसके बाद में भी वो फाइल किया तो भी चलता है। आज तक रेरा ने 20th को वो विंडो क्लोज, भी मालूम नहीं नया वेबसाइट में करेंगे या नहीं करेंगे, बल्कि आज तक तो नहीं किया है। दूसरा चीज, अभी पार्शियल कंप्लायंस क्वार्टर का भी करना कंपलसरी है। जैसे लेट्स से कोई प्रोजेक्ट है जो 26 फरवरी 2025 को रजिस्टर हुआ है, तो उसका 26 फरवरी 2025 टू 31 मार्च 2025 ये पर्टिकुलर पीरियड का भी आपको क्वार्टरली कंप्लायंस करना है। उसका पर्टिकुलर टैब जो है वो नया वेबसाइट में ओपन हो चुका है। देन आपका अगर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल्स में कुछ चेंजेस है, देन अबाउट द फिजिकल प्रोग्रेस जो मैंने बोला फॉर्म 1 2 3 ये सभी आपको अपडेट करने हैं। जो जैसा मैंने आपको बोला फाइनेंशियल क्वार्टर्स विद इन 20 days ऑफ द क्वार्टर यू हैव टू फाइल दी अपडेट्स। जो एनुअल अपडेट्स मैंने बोले फॉर्म 5 फॉर्म 2A, देन ये जो है आपको ये जो फॉर्म्स है रेरा को भी अपडेट करने हैं और आपकी जो बैंक है उस बैंक को भी देने हैं फॉर द विड्रॉल ऑफ द मनी। देन जो इंसिडेंटल अपडेट्स मैंने बोले एनकम्बरेंस, सरसाई, प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स, आपका आर्किटेक्ट चेंज हो गया, सीए, इंजीनियर, दैट आल्सो यू हैव टू अपडेट। एंड कंप्लीशन जो है, एक बार कंप्लीशन आ गया प्रोजेक्ट का तो ओसी जो है वो अपडेट करनी है। फॉर्म 4 मैंने लिखा है, बट देन रिसेंटली महारेरा हैज नाउ एब्रोगेटेड दिस फॉर्म 4. देयर इज फॉर्म 4 इज नो मोर एप्लीकेबल, यू डोंट हैव टू सबमिट दैट, यू हैव टू जस्ट सबमिट दी ओसी। ओसी के साथ साथ कंफर्मेशन भी सेंड करना है। जो अथॉरिटी ने आपको ओसी दी है उनसे एक ईमेल भी जाना चाहिए रेरा अथॉरिटी को कि ये ओसी हमने इशू की है। सीसी के लिए भी है, सीसी कंफर्मेशन जिसे बोलते हैं, वैसे ही ओसी के लिए भी दिस पर्टिकुलर थिंग इज एप्लीकेबल। रीजन आपको मालूम है, ऑफ लेट कल्याण डोंबिवली में मोर देन 40-45 प्रोजेक्ट्स व्हिच वेर रजिस्टर्ड विदाउट हैविंग प्रॉपर अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स। ओसी जो है वो सीसी जो है केडीएमसी की वो फॉर्ज करके रेरा को दी गई और रेरा के रजिस्ट्रेशन लिए, लोगों को प्रोजेक्ट बेचे, एडवर्टाइज किए रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है करके। And then when all this fraud became public, so RERA has made this obligatory कि आपकी CC है, OC है, जो भी document which is issued by the competent authority, that competent authority simultaneously has also need to send a mail to the RERA authority. ये जो mail IDs है वो भी designated हर एक district wise अलग अलग करके दे दिया है, except MCGM, क्योंकि MCGM और RERA का website जो है वो integrated है, इसलिए MCGM के details देना। MCGM को अगर ओसी जो है वो MCGM ने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, अगर इन्होंने इशू की है तो सीसी कंफर्मेशन, ओसी कंफर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एवरी फॉर द एवरी प्रोजेक्ट यू हैव टू गिव दिस, इवन दो द प्रोजेक्ट इज इन मुंबई बट दिस सीसी इज महारा की सीसी है या एसआरए की सीसी है, इन दैट केस आल्सो दिस सीसी कंफर्मेशन, ओसी कंफर्मेशन इज नेसेसरी।
एक्सटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एक्सटेंशंस के यू ऑलरेडी नो मेनी ऑफ द पीपल सेक्शन 6 के अंडर पहले एक एक्सटेंशन देते थे 1 साल के लिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द अलॉटीज, जो अभी अक्टूबर 2024 से रेरा ने पूरा कंप्लीटली बंद कर दिया. उन्होंने बोला है कि नथिंग डूइंग, ये आप ऐसा एक एक्सटेंशन एक डेट दे देते हो और उसके बाद में 1 साल का ऐसे ही एक्सटेंशन ले लेते हो, तो वी वोंट अलाउ दिस. और एक्ट में भी लिखा है सेक्शन 6 का एक्सटेंशन ओनली इन केस ऑफ फोर्स मैजोरी मिलेगा. तो जो कोविड के टाइम पे दिया था 6 महीना 2 बार मतलब 1 साल का, उसके लिए सेक्शन 6 है. सेक्शन 6 इज नॉट फॉर दिस. सो सेक्शन 6 का एक्सटेंशन अभी पूरा बंद है. आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए तो देयर इज नो ऑप्शन बट टू गेट 51% कंसेंट ऑफ द अलॉटीज. देयर इज नो ऑप्शन. एंड देन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 you can go for the extension. There is no limit. 3 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल whatever you can justify, उसका आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो. आपको उसके साथ साथ एक्सप्लेनेटरी नोट भी देनी है कि आपको ये क्यों एक्सटेंशन चाहिए, आपको रीजन स्पेसिफाई करने की, आपको डिले क्यों हुआ. In such cases RERA will either grant or reject the extension, whatever. At the time of rejection they'll give the reasons why they are rejecting. Then ऐसा जो एक्सटेंशन है, this extension will not at all jeopardize the rights of the allottees. Allottees के rights क्या है? अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो what are the rights of the allottees? So let's say 31st March 2000 was the date of possession given in the agreement for sale. So as on 1st April 2025, that is the वो एक दिन के बाद अगर उस पर्टिकुलर एलोटी को पोजेशन नहीं मिला है तो he is vested with the 2 options. First option, to stay in the project and demand interest on that particular amount, whatever the amount is paid to the promoter, उसको SBI MCLR जो रेट है उस रेट से उसके ऊपर इंटरेस्ट क्लेम करें. सेकंड ऑप्शन, आई डोंट वांट टू स्टे इन द प्रोजेक्ट. अगर ये प्रोजेक्ट डिले होता है, मेरे बच्चों का स्कूल चालू होने वाला था इसलिए मैंने ये लिया था, अभी आप मार्च में नहीं दे रहे हो तो मुझे सीधा नेक्स्ट ईयर ही आना पड़ेगा. तो नेक्स्ट ईयर में देखता हूँ कहाँ पे लेना है, मुझे अभी ये घर ही नहीं चाहिए. आई वांट टू टोटली विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट. तो इन दैट केस आल्सो all the amounts that are paid by the allottee to the developer has to be returned along with the interest at the rate of SBI MCLR plus 2%. The option is with the allottee. I repeat, the option is with the allottee. Allottee has to choose कि उसको प्रोजेक्ट में रहना है और इंटरेस्ट चाहिए या उसको प्रोजेक्ट से विथड्रॉ करना है. एंड अकॉर्डिंगली a communication can be done with the developer, and if at all it's there authority. So sorry, no, these are the 2 options that are given. If at all the allottees of the opinion that the options or the compensation given in either of these 2 options is not sufficient, so in that case the allottee can file an application with before the adjudicating officer in the particular format, form B, and he'll have to set out the conditions, he'll have to set out the grounds why these options are not compensating the allottee and why the additional compensation should be given. And then the adjudicating officer will review the claim and will decide whether to give the additional compensation or not. So, sorry? Yes, can ask for the second thing is such extension granted under any of the provisions of the act will not jeopardize these rights of the allottee. So let's say किसी एक अलॉटी है जिसने कंसेंट भी दिया है कि आप 1 साल के लिए प्रोजेक्ट एक्सटेंड करो, वो अलॉटी भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है रेरा के पास कि मेरे को कंपेंसेशन दो, मेरे को इंटरेस्ट दो या फिर मुझे मेरा पैसा वापस दो. Giving a signature for the extension does not mean that he has relinquished his rights in the allotee by virtue of section 18. ये कंप्लेंट लेके रेरा के पास जाते हैं तो रेरा सिंपली बोलता है ओसी देना मेरा काम नहीं है, ओसी बराबर दिया है या नहीं दिया ये चेक करना भी मेरा काम नहीं है. अगर ओसी है तो आई अज्यूम कि प्रोजेक्ट इज कंप्लीट एंड रेडी फॉर द ऑक्यूपेशन. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज विद रिस्पेक्ट टू दिस ओसी, you go and please file a complaint with the authority who has issued this OC. Don't come to us.
एक छोटा सा इसके अलावा और एक एक्सटेंशन का टाइप है, that is without consent. So if some developer is not able to get consent, 51% consent, and because of which प्रोजेक्ट का काम पूरा रुका हुआ है, क्योंकि अगर समझो आपके पास इफ योर प्रोजेक्ट इज नॉट वैलिड, यू कैन नॉट एडवर्टाइज, आप सब रजिस्ट्रार के पास जाके आपका एग्रीमेंट भी रजिस्टर नहीं कर सकते, बैंक्स आर नॉट गिविंग नाउअडेज द नेक्स्ट फर्दर इंस्टॉलमेंट्स, किसी को होम लोन नहीं मिलता है, प्रोजेक्ट पूरा स्टक हो जाता है. सो इन दैट केस ऑल्सो विदाउट कंसेंट भी, मतलब ये 51% कंसेंट आपके पास नहीं है तो भी एक्सटेंशन मिल सकता है. इन दैट केस यू हैव टू explain the position why you are not able to give this 51% consent, why the extension must be given to you even though you don't have this 51% consent. Then this application, once this application is filed, this application comes before the honorable chairman of the Maharera authority for the hearing. You have to make up your case before the honorable chairman, and if at all or everything goes fine, then you get an extension. So these are the two types of extension, one with the 51% consent, one with the without 51% consent. So far I've tried covering migration from the old portal to new portal, additional documents that are required for new project registration in the new portal, QPRs and extension. Now I open this forum for questions and answers. Yes. Excuse me, if a mic can be given. Yes. Yeah. My question is that if cancellation happens either by allottee or by the promoter, the stamp duty or GST which has been paid by the allottee, who will bear that cost? See, again, you have to refer the terms and conditions of the agreement for sale in that case. Is that whatever amount that are paid to the government authorities will not be refunded, then it will not be refunded. So if promoter has not given the position on the time, it's liability of the promoter. In that case, if the allottee want to withdraw from the project, Yeah. in that case, then the order should specify that कि stamp duty, GST जो भी दिया है वो सब आप वापस करो. Order should specify that. Then only that can be refunded. Order means order by the order by the RERA authority. Okay, means he will have to go to complain. RERA authority को yeah. Yeah. Another आपने कहा था कि चेंजेस हो जाते हैं एरिया में, थोड़ा से अप्रोक्सीमेट चेंजेस हो जाते हैं, वेरी स्मॉल चेंजेस. इन दैट केस कंपेंसेशन मिलता है या फिर प्लस माइनस जो भी है होता है, उस केस में क्या एग्रीमेंट फिर से रिवाइज करना होता है? नॉट नेसेसरी. अभी वो बिकॉज ऑफ विच वो जो चेंज है वो किस वजह से हुआ है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. इफ एट ऑल योर रजिस्ट्रेशन एक्ट रिक्वायर्स कि आपको जो एडिशनल या फिर करेक्शन डीड फाइल करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू दैट. सो वो म्यूचुअली बेयर करेंगे? म्यूचुअली, हाँ, वो जो भी रहेगा वो उनको बेयर करना पड़ेगा. ओके सर, अभी आपने एसपी थोड़ा सा कुछ इससे रिलेटेड है. यस, बट अदर्स आर आल्सो देयर. आई थिंक माय क्वेश्चंस मतलब सबके काम में ही आने वाले हैं. आपने जो एसओपीसी, you ask a last question then you pass on the mic to somebody else. All right, I'm passing. Okay. Sir, as per the new website, if the migration is not completed from the promoter and the next quarter is coming in the, so is it mandatory to complete the migration and then only QPR will be submitted, or? Yes, that's correct. It means we need to completion of migration is absolutely necessary. Unless you do the migration, submission of the QPR is not possible. Even though the website is showing the QPR tabs are open over there, and I mean, whether even though I'm not completing the migration, I can't submit the QPR for the next which is coming. Yes. No. See, आपका जो old website है, उसमें अगर कोई application pending है, तो ही आपका old website में you can upload the document. Otherwise, if you go and try to upload, you won't be able to upload the documents in the old website. Compulsorily, you have to migrate the project from old to new and then submit the QPR. Okay, and QPR, so for example, for the last quarter which we have filed, there are, even though old में मैंने already डाल दिया है, लेकिन as a matter of abundant precaution, it is advisable to upload it into the March का जो आपका QPR है, वो नया website में आप फिर से upload कर दो. Okay, yeah. Thank you, sir. Sir, there are certain schemes of DCPR where, like 3311 or 20B, where certain units are blocked because the PAB component has to be given outside the project.
So at the time of registration, such units are not sellable. So in the list of inventory, such units would not be shown as a sellable. But eventually what happens that such units are then shifted outside and these units become sellable. So is it now possible to update the sellable units, and what should be the approach? I mean, Yes, how it it has to is. be done? See, once by virtue of any order or by virtue of any document, the units that were previously blocked as a PAP or for some any other component, and now that becomes free and available for the sale. So you'll have to update that into your Form 3 and also on the portal. If those units are actually previously existent. You may do also incidental. आपको आज करना है टेबल सी में होगा, सोल्ड इन्वेंटरी में भी होगा. Yeah, sir, my question is, earlier RERA used to allow multiple registration on one single layout. This is not. RERA is allowing. See, if there are multiple buildings in a single layout, let's say 5 buildings, RERA will allow you 5 registrations. That's not an issue. RERA has not stopped giving such registration, because what RERA has stopped in a single building. Previously, people used to do two registrations. Let's say third floor तक commercial था और उसके ऊपर आपका residential था. So previously RERA used to allow even 2 registrations in that also. That is part building, commercial, and ऊपर का residential का अलग. That RERA has stopped. This is multiple registrations in one single layout is not stopped. This is One CTS number, one registration. That is what. One CTS number. See, वो जो declaration है, वो जो आप लोग दे रहे हो registration के time पे, तो उसका ये था कि बहुत बार क्या होता था, डेवलपर अभी एक के पास गया. पहले कैसा था 2022 या 23 में कुछ भी आप सबमिट करो रेरा का रजिस्ट्रेशन मिल जाता था. एवरीबडी वाज डूइंग रेरा रजिस्ट्रेशन. तो अभी गए, फिर देखा कभी तो अरे ये रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है. 2 महीना गया, 3 महीना गया, 6 महीना गया, प्रमोटर का पेशेंस खत्म हो गया. देन ही वेंट टू सम डिफरेंट कंसल्टेंट. वो पहला वाला जो एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है, एंड दूसरा वाला जो एप्लीकेशन है वो उसने नया कंसल्टेंट ने नया एप्लीकेशन फाइल कर दिया. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसके वजह से एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के लिए 2 या 3 एप्लीकेशंस एट अ टाइम चल रहे हैं. तो डेवलपर वाज लाइक कि इसमें से जिसका भी पहला मिल जाएगा वो मैं ले लूंगा. So it is allowed. तो एक टाइम पे एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही एप्लीकेशन करना है. Thank you. सर जैसे 3 months फ्रॉम द ओसी कन्वेंस करना है, बट देयर आर सम केसेस के मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दिया मेंबर्स ने या पूरा पैसे नहीं दिया, तो वो सिचुएशन में बिल्डर कैसे हैंडल करेगा कन्वेंस का सोसाइटी को? ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द अलॉटीज ने अगर डेवलपर का जो भी पैसा है वो नहीं दिया है, तो इन दैट केस डेवलपर कन्वेंस स्टॉप कर सकता है क्या? दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? करेक्ट. ओके, सो इन दिस केस इट कैनॉट बी डन. So conveyance का जो clause है that has to be unconditional. Previously people used to put this clause that within 3 months from the date of the OC I'll have to give the conveyance provided that the developer has received all the money, etc, etc. But now RERA doesn't allow such type of conditional clauses. The conveyance clause has to be unconditional. Once OC is received within 3 months, the developer has to give conveyance to the association of LOT. He cannot hold the registration just be conveyance just because 2 or 3 people have not paid money. Sometimes RERA free this account. So Many times. So how to unfreeze that? Like, so जिस चीज समझ लो किस चीज की वजह से आपका अनफ्रीज किया है वो चीज करेक्ट कर दो, अनफ्रीज हो जाएगा. सी like बहुत बार क्या होता है, आपका प्रोजेक्ट का वैलिडिटी खत्म हो गया फिर भी आपने एक्सटेंशन नहीं लिया है. इन दैट केस RERA फ्रीजेस योर बैंक अकाउंट. सिंपल वेज गेट द एक्सटेंशन. आपका प्रोजेक्ट आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, जिंदा कर लो, जो मर गया है वो उसको, आपको आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा. QPR नहीं किया इसलिए करते हैं, तो QPR करो, एप्लीकेशन करो RERA के पास, तो आपका अनफ्रीज होगा. thank you. सर इसमें टेक्निकल डिटेल्स में हम लोगों को प्लॉटेड स्ट्रक्चर एरिया डालना होता है, तो उसमें हम लोग जो लैंड ओनर से अगर हम लोग ने लैंड लिया है तो हम उसको सोल्ड एज अ सोल्ड करके दिखाएंगे कि इन्वेस्टर कर ओनर दिखाएंगे प्रॉपर्टी लैंड? At the time of giving your
प्लॉटेड स्ट्रक्चर एरिया टेक्निकल डिटेल्स में आता है ना। जो आपको जब भी आप इन्वेंट्री देते हो हाँ, हाँ। और उसमें आपने जो भी यूनिट्स लैंड ओनर को अलॉट किए हैं उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, दिस इज योर क्वेश्चन करेक्ट? नहीं, the whole land is of the owner only. We had taken a land from the owner and we are going to provide in the amount, distribute the RERA Distributor What? Towards owner revenue and- share. Yeah, There is a revenue share. exactly. There Revenue is a share will be revenue share. distributed. Okay, so And but the land is of the owner. okay, So when we'll take that land in the plotted structure area, so we'll mention that land as a sole or the owner property because no, they gave an in that option. case, if you are asking this question from the point of view of Form 3, that what is the consideration that must be shown for that particular land, is that correct? No. In the technical details, it is In technical details, you have to mention the landowner ka name separately. Whoever is the landowner as per the title report. टाइटल रिपोर्ट में जो लैंड ओनर का नाम है उसका लैंड ओनर का नाम करके आपको डालना पड़ेगा. Okay, fine. Sir, one more thing. हम लोग का जो जब भी हम लोग redevelopment में जाते हैं, when we go for redevelopment, so there are properties, the owners are already there. So we should show in the inventory of the landowner properties also, or just the only properties which are going to sell outside. इन्वेंट्री में आपको पूरा का पूरा इन्वेंट्री दिखाना है जो भी सैंक्शन इन्वेंट्री है एंड देन उसका बाइफर्केशन देना है. उसमें से कितने यूनिट्स जो है वो सेल के लिए अवेलेबल है, कितने यूनिट्स आर ऑलरेडी अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ द रीडेवलपमेंट सोसाइटी, दैट वी हैव टू डिस्क्लोज. Okay, fine. So thank you. वेलकम. Sir, question. Sir, in structural conveyance, society and actual landowner will make agreement, and the developer and promoter will be the conforming party, right? See, in case where there is a different landowner, अगर landowner अलग है, No, And whole developer face, alag hai. whole face landowner is only one, but faces are more, might be 20 to 25 faces, and it will take 20 years, might be, That's to complete the whole face. So That's in that case, structural conveyance will be made with the landowner only, Yes, and the developer and promoter will be the conforming party. that's correct. But when society will get the land conveyance, Okay, when the last building in the layout is complete, that will took 20 years, sir. there is no option because Okay. legally also it's not possible to execute a land before that. So say in a case where I complete the migration one day prior to the project registration coming to an end, Okay, and I take the consent of 51% members, that is necessary. I have only one day left for extension of registration. If I make an application, so what is the status of that project? Does it get registered or it is in abeyance? it's not particularly in abeyance. Your bank account is operative, Okay. but you won't be able to register the agreements with the sub-registrar once your project is expired. So I have to hold on the agreements till the time the project is registered. That's Thank you, correct. sir. Thank you. सर लैंड ओनर्स बैंक अकाउंट का नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए? सेम जो मैंने बताया वही सेम. अभी जैसे 5 लैंड ओनर्स हैं तो उनका सबका नाम है, उसका सबका नाम है, एक एक का नाम आएगा जिसका जिसका भी बैंक अकाउंट है. कॉमन अकाउंट होगा ना, अलग है? नॉट नेसेसरी. अगर हर एक को अलग अलग यूनिट्स है बेचने के लिए, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डेवलपमेंट एग्रीमेंट. इफ देयर आर 5 डिफरेंट लैंड ओनर्स एंड 5 डिफरेंट लैंड ओनर्स को अलग अलग यूनिट्स दिए गए हैं विच दे कैन इंडिपेंडेंटली सेल इन द ओपन मार्केट, तो पांचों लोगों को बैंक अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे. हाय, तो ये क्वेश्चन था कि अगर जो एक बिल्डर है तो उनके जनरली मल्टीपल एंटिटीज होते हैं, तो वाई माइग्रेशन आपने बताया कि देयर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो न्यू पोर्टल में चाहिए रहेगा, बट अभी जो प्रोजेक्ट चालू है वो एंटरप्राइज के नाम पे एक्चुअली कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ रहेगा ही नहीं, वो दूसरे इसमें रहेगा, एंड कंसेंट लेटर जैसा भी यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है नहीं, फिर माइग्रेशन कैसे होगा? So in that case, let's say you don't have a proof of that particular place, या फिर वो दूसरे किसी के नाम पे है, जैसा जीएसटी या बाकी सब चीजों के लिए हम लोग करते हैं. आई एम एडवाइजिंग दैट ओनली. आप वो कंसेंट लेटर ले लो, जितना हम लोग स्पेसिफाई या फिर जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं रेरा को उतना एक्सप्लेन करके अपलोड कर देंगे. आज तो वो कोई भी चेक नहीं कर रहा है, समडे दे माइट चेक कि आपने जो मतलब सबमिशन किया है वो करेक्ट है या नहीं है. बट देन आपका जो प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आप दे रहे हो, 2 एड्रेस प्रूफ और ये मैच होना चाहिए, वो पर्टिकुलर जो भी आपने एड्रेस दिया है वो.
एंड अगर वो उस पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे नहीं है तो यू गिव अ एनओसी फ्रॉम दैट, जिस किसी पे भी नाम पे है उससे एनओसी लेके आप अपलोड कर दो सेफ साइड. Sir, in the new Tera website, there's an Excel that you have to upload, the macro one. I'm not able to hear you out. Hello. Where Can are you you hear me first of now? all? Okay, yeah. So in the new Excel, you have to add as many units there is. There are certain columns that you cannot edit. So over there, it's written habitable unit. But then what if, for example, a lot of them have society office or play area, which is inside the building as well. So we have to disclose that, or there is no need. See, you'll have to disclose that. अगर आपके प्लान में सोसाइटी ऑफिस जो है वो अलग से दिखा है, लेट्स से ऑन फर्स्ट फ्लोर सोसाइटी ऑफिस है एंड फ्लैट नंबर 101, 102, 103 है, तो यू हैव टू डिस्क्लोज द सोसाइटी ऑफिस सेपरेटली. But then what will I choose later on? Because after that also it asks ready reckoner or. If it is available for the sale or not available for the sale, if you select that, तो वो आगे का जो है वो डिसेबल हो जाता है. रेडी Because, रेकनर there is only sold, unsold, book, reservation or rehab. So where should I तो put जिस it? उसमें से जो भी whatever, let's say रिजर्वेशन या ऐसा कुछ आप डालोगे जहां से आपको वो आगे का जो है वो डिसेबल हो जाता है, मतलब इट इज Okay. नॉट अवेलेबल फॉर सेल, दैट यू हैव टू सिलेक्ट. Okay. And in the previous RERA website, there was an option to put proposed carpet area as well. But then in the new one, there is no such thing. So that is जो अभी आपके completely पास है wrong. उतना ही Okay, डिस्क्लोज करना है, दैट्स इट. okay. So my question. Hello. हाँ, यस. माइग्रेशन के टाइम पे जो बिल्डिंग डिटेल्स डालनी है, अगर उसमें कुछ करेक्शंस है, यानी कि अगर प्रमोटर ने कुछ गलत डिटेल्स दी थी बट अभी मुझे कुछ करेक्ट फिगर्स पता है, तो वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सकते चेंज हो. करके डाल दूं? कर सकते हो. यस, फ्लोर्स नहीं चेंज कर सकते, नंबर ऑफ फ्लोर्स जो ओल्ड में वही इधर रहेगा. ऑल दैट आर सेम, बट वो कॉन्फ़िगरेशन Yes. ये मेजरमेंट्स कुछ चेंज हुई है उनकी. यस. This is the last question. Yes. Where do I get the SRO membership number? See, there are 4 or 5 specified SROs. जब भी आप लॉग इन करते हो तभी उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ जाता है. नरेट को है, MCHI है, तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उनका गूगल फॉर्म वगैरह रहता है, वो सब आप भर के SRO मेंबरशिप ले सकते हो. There is some uneditable form in the QPR section or something there. No, I didn't get your Because I am question. getting the stuck. Sorry. Editable in the form. Sorry? Do not get it edited. Which form? Some field in the new form. See, if you are asking about Form 3 and if some fields are not editable, in that case, you can raise a ticket with the help desk specifying your query. Or alternatively, you can also visit the RERA office to particularly highlight whatever the difficulties that you're facing. Okay. Thank you. Thank you very much.